Assalamualaikum. I Professor Momin Mubashira Kausar, Assistant Professor in Zoology Department from JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. In this video, we will learn about Darwin's theory of organic evolution. This theory is also known as theory of natural selection. The theory of natural selection was given by the scientist Charles Darwin. He was an English naturalist and the most dominant figure among the biologists of 19th century. इतिहास के one of the greatest scientists रह चुके हैं. He published a book which was entitled On the Origin of Species by Means of Natural Selection. This book was published in 24th November 1859. In this theory, Charles Darwin proposed the concept of natural selection as the mechanism of evolution. अब डार्विन का कॉन्सेप्ट और डार्विन का कंट्रीब्यूशन नेचुरल सिलेक्शन में जानने से पहले कुछ और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है. इनमें दो साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा आता है जिनसे डार्विन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज थॉमस मैल्थस. इन्होंने भी अपनी एक बुक पब्लिश की थी एंड द नेम ऑफ द बुक is an essay on the population of an essay on the principle of population. Darwin was influenced by this book in which Thomas Malthus stated that every population has built-in variations in their characters. From the analysis of data of collection and from Malthus' essay on the population, he got the idea of struggle for existence within all the populations due to continued reproductive pressure and limited resources. Then another scientist was Alfred Russel Wallace. Darwin was highly influenced by a short essay entitled On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type. This book was written by another naturalist, Alfred Russel Wallace, who studied biodiversity on Malayan archipelago and came to similar conclusions. जिस कंक्लूजन तक डार्विन पहुँचे थे, मीन्स जिस तरह से डार्विन वर्क किया थे उसी तरह से इनका भी कंट्रीब्यूशन है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, क्योंकि जिस तरह के कंक्लूजन्स डार्विन के थे बिल्कुल सेम उसी तरह के कंक्लूजन्स इन्होंने भी दिए थे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी. इसीलिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. देन पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म. These are mainly given by थॉमस मैल्थस. जो बुक इन्होंने पब्लिश की थी, इस बुक में इन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे डार्विन ने उन्हीं के ऊपर वर्क किया और जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो थॉमस मैल्थस ने ही दिए थे. एंड द फर्स्ट पोस्टुलेट इज जियोमेट्रिक इंक्रीज. मीन्स a species has unlimited reproductive potential. According to Darwinism, the populations tend to multiply geometrically and reproductive powers of living organisms are much more than required to maintain their number.
Like paramecium, during the period of 24 hours, they can divide themselves 3 times by binary fission during favorable conditions. At this rate, a paramecium can produce a clone of about 280 million paramecia in just 1 month. While in 5 years, they can reproduce a huge mass equal to 10,000 times than the size of the earth. Similarly, the plants also reproduce very rapidly. Like a single evening primrose plant produces about 118,000 seeds in their lifespan, and single fern plant produces few million spores. These examples confirm that every species can increase their population within a few generations and carry all the available space on the earth. So, the number of species will be more than can be supported on the earth. But number of organisms of a species remains almost constant except for seasonal fluctuations. In rainy season, the population of insects like mosquitoes, flies, their population increases very much because that period is favorable for them, but their population remains constant in normal days. So they can struggle for their existence. Here the question arises like कि अगर एक स्पेसीज में अगर अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है तो उनमें अनलिमिटेड पॉपुलेशन सिर्फ सीजनल फ्लक्चुएशन में ही क्यों उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही क्यों उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. सो द अनदर पोस्टुलेट इज लिमिटेड फूड एंड स्पेस, मीन्स their resources are limited. Darwinism states that a population tends to increase geometrically, but the food increases only arithmetically. So, two main limiting factors on the tremendous increase of population are limited food and space. And these factors do not allow a population to grow indefinitely, which are nearly stable in size except for seasonal fluctuations. Then another postulate is struggle for existence. अब यहाँ पर पॉपुलेशन लिमिटेड है और एक स्पेसीज के अंदर अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, तो एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन मिलेगा. ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉपुलेशंस बट लिमिटेड फूड एंड स्पेस, there is a competition between individuals having similar requirements, and this competition between living organisms for the basic needs of life like food, space, mate, etc. is called a struggle for existence, which is of 3 types. हमें अलग अलग तरह के कंपटीशन ऑर्गेनिज्म में मिल सकते हैं. मेजरली हमें 2 टाइप के कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड अनदर इज़ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन.
The intra-specific means between the members of same species. The competition between the members of same species. Like two dogs struggling for a piece of meat. And interspecific means between the members of different species, like between predator and prey. अब जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है वो मोर सीवियर होता है, क्योंकि यहाँ पर हार जीत का सवाल हो जाता है। एक ही पॉपुलेशन के दो ऑर्गेनिजम्स कोई एक चीज़ के लिए, कोई एक ज़रूरत के लिए एक दूसरे से compete करेंगे। Variation. Darwin stated that the variations are generally of two types. The first one is continuous variation and another is discontinuous variation. Discontinuous variation like mutations. अब यहाँ पर डार्विन को इस वक्त तक म्यूटेशन के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में कोई भी बात नहीं की। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशन था, मीन्स जो स्मॉल छोटे छोटे एंड डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में डार्विन ने बात की। एंड दीज कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर यूजफुल, सम आर यूजफुल एंड सम आर नॉट यूजफुल। तो जो डार्विन का ऐसा कहना है कि जो वेरिएशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो यूज़फुल चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे यूज़फुल चेंजेस, वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। और इसको डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मीन्स जो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के बेटर सर्वाइवल के लिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ये जो टर्म है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक्चुअल में अल्फ्रेड रसेल वेलिस के दी हुई टर्म है और डार्विन ने इसी टर्म को नेचुरल सिलेक्शन कहा है। देन फिफ्थ पोस्टुलेट इज नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पर जो नेचुरल सिलेक्शन का टर्म है ये डार्विन ने दिया, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, दिस टर्म वाज गिवन बाय अल्फ्रेड रसेल वेलिस। डार्विन स्टेटेड दैट as many selects the individuals with desired characters in artificial selection, nature selects only those individuals out of the population which are with useful continuous variations। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटे छोटे जो कंटिन्यूस वेरिएशन चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, वही कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और इसी को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा। देन इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। डार्विन बिलीव्ड दैट the selected individuals pass their useful continuous variations to their offsprings so that they are born fit to the changed environment. Then speciation. According to Darwinism, useful variations appear in every generation and are inherited from one generation to another. So the useful variations go on accumulating, and after a number of generations, the variation becomes so prominent that the individual turns into a new species. According to Darwinism, evolution is a gradual process and speciation occurs by gradual changes in the existing species. देन एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। अब डार्विन ने जो अपनी थ्योरी प्रपोज की, मीन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
तो इनके भी कुछ एविडेंसेस थे जो इनके फेवर में थे। तो यहाँ पर हम फिर जिराफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जो लैमार्क ने बताया था कि जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे उन्होंने खींच के अपनी गर्दन लंबी कर ली और पेड़ की पत्तियों को खाने लगे। इस तरह उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ। बट द डार्विन्स पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि जो छोटे छोटे जिराफ थे, जिराफ भी नहीं, जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो छोटी छोटी गर्दन वाले जिराफ के एंसेस्टर्स थे जिनके फोर लिम्स हाइंड लिम्स भी स्मॉल थे, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मीन्स उनको जो लैंड की ग्रासेस थी वो ख़त्म हो गई, उन्हें कुछ नहीं मिला। और जो ऑलरेडी लंबी गर्दन वाले थे, लार्ज नेक्ड जिराफ थे और जिनके जो लिम्स थे वो भी लार्ज इन साइज़ थे, तो क्या हो गया कि जितने भी छोटे छोटे थे जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे जिनकी नेक शॉर्ट थी, तो वो ख़त्म हो गए, वो मर गए। और जो लंबी लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे उनकी मीटिंग हुई और उनके जो जीन्स थे वो उनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गए। इस तरह से उनके कैरेक्टर्स जो है तो ट्रांसफ़र होते गए और वो धीरे धीरे लंबी लंबी गर्दन वाले जिराफ आते गए और इस तरह से एक नया स्पीसीज बन गया। देन एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म। अब कुछ एविडेंसेस थे जो डार्विन को फेवर नहीं कर रहे थे, जो डार्विन के अगेंस्ट में थे। द इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन दोज ऑर्गन्स विच कैन बी ऑफ यूज ओनली व्हेन फुल्ली फॉर्म्ड। कुछ जो चेंजेस आते हैं, कुछ ऑर्गन्स के चेंजेस होते हैं, मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जब वो फुल्ली फॉर्म्ड होते हैं, जब कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं, तभी वो वर्किंग करते हैं। विंग ऑफ बर्ड्स सच ऑर्गन विल बी ऑफ नो यूज़ इन इंसिपिएंट और अनडेवलप्ड स्टेज। मीन्स जो बर्ड्स के विंग होते हैं वो जब तक अनडेवलप्ड कंडीशन में होते हैं तब तक के वो वर्किंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डार्विन की थ्योरी मीन्स डार्विन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मीन्स यहाँ पर अब जो वेस्टिजियल ऑर्गन हैं उनका जब कुछ काम ही नहीं है तो वो इनहेरिट क्यों होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसी तरह इनहेरिटेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, एग्जाम्पल एटलर्स इन डियर एंड टस्क इन एलिफेंट। Then presence of neutral flowers and sterility of hybrids. Did not differentiate between somatic and germinal variation. Means अगर वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएशन किस पार्ट में हो रहा है, किस सेल में हो रहा है, जर्मिनल सेल और सोमैटिक सेल। He did not differentiate. Then he did not explain the cause of the variations and the mode of transmission of variations. Also, refuted by Mendel's law of inheritance, which state that inheritance in particulate. Then, principle of natural selection. It was proposed by Ernst Mayr in 1982. This principle demonstrates that natural selection is the differential success in reproduction and enables the organism to adapt them to their environment by development of small and useful variations. जो organisms के अंदर छोटे छोटे small changes आते हैं, variations आते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। These favorable variations accumulate over generation after generation and lead to speciation. ये जो छोटे छोटे चेंजेस और कैरेक्टर्स होते हैं ये हर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाते हैं और इस तरह ये एक साथ इकट्ठा ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्यूमुलेट होकर एक नया स्पीसीज फॉर्म कर देते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स थ्रू इंटरैक्शंस बिटवीन द एनवायरनमेंट and inherent variability in the population.